tetracaine, benzocaine, chlorprocaine. अमाइड लिंक लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं लाइक लीडोकेन, ब्यूपीवाकेन, डिबुकेन. लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं दे ब्लॉक बोथ generation and conduction of nerve impulse. By depressing higher center, local anesthetic stimulates CNS and produces restlessness, tremor, mental confusion, and convulsion. In toxic doses, it causes respiratory depression, coma, and death. Cocaine is a powerful stimulator, while procaine and other agents produce less CNS stimulant effect. लोकल एनेस्थेटिक्स आर मायोकार्डियल डिप्रेसेंट. मायोकार्डियल डिप्रेसेंट का मतलब क्या है? हार्ट की मसल मायोकार्डियम को ये लोग क्या करते हैं? डिप्रेस कर देते हैं. फिर हमारे पास है ब्यूपीवाकेन. बच्चों ब्यूपीवाकेन जो है, ब्यूपीवाकेन इज मोर कार्डियोटॉक्सिक. Bupivacaine is more cardiotoxic and can produce ventricular tachycardia, fibrillation. Local anesthetics also produce decrease in blood pressure, which may be due to sympathetic blockade. Only cocaine has property to raise blood pressure due to its sympathomimetic property. Local anesthetics are readily absorbed through mucous membrane and damage skin. अब what are the therapeutic uses of local anesthetics? Uses क्या क्या है? Surface anesthesia. Now uses क्या क्या है? Surface anesthesia, spinal anesthesia, infiltration anesthesia, कोई nerve block देना हो, right? या cardiac arrhythmia का treatment करना हो. Lignocaine stabilizes neuronal membrane by inhibiting ionic flux required for initiation and conduction of impulses, thereby affecting local anesthetic action. Drowsiness following administration of drowsiness का मतलब हल्की हल्की सी नींद आना is usually an early sign of high blood level of drug and may occur as a consequence of rapid absorption. Lignocaine injections are indicated for production of local or regional anesthesia. Now, benzocaine, it is a local anesthetic belonging to ester group. It is poorly absorbed from the intact epidermis and is generally employed for tropical anesthesia. Benzocaine has been termed as one of the most widely used and safest external analgesic, and that the incidence of sensitivity of benzocaine is quite low. Now, डिबुकेन अगला ड्रग है. डिबुकेन, ब्यूपीवाकेन. डिबुकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है, बट खास बात ये है लॉन्गर ड्यूरेशन है. ब्यूपीवाकेन जो है इट इज अ पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जो स्पाइनल इन्फिल्ट्रेशन एपिड्यूरल नर्व ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है. नाउ skeletal muscle relaxants. Skeletal muscle relaxants वो agent हैं that act peripherally at neuromuscular junction centrally in cerebrospinal axis to reduce muscle tone. बेसिकली हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मसल टोन को रिड्यूस कर रहे हैं. Skeletal muscle relaxants are classified into two main groups, and D-tuberocurane is the alkaloid obtained from Chondrodendron tomentosum plant. It initially produces muscle weakness followed by flaccid paralysis after parenteral transmission. The paralysis occur in following order: paralysis of finger, paralysis of toes, eyes, ears producing diplopia, speech, slurring, difficulty in swallowing, muscle of neck, limb paralysis, diaphragm and death. हाई डोज में ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को भी ब्लॉक कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज पैनक्यूरोनियम. ये एक सिंथेटिक स्टेरॉइडल कंपाउंड है, अप्रोक्सीमेटली 5 times more potent than D-tuberculin.
Vecuronium is a congener of pancuronium with short duration of action. Succinylcholine is a structural analog of acetylcholine. Acetylcholine के जैसा है ये. The therapeutic uses of peripherally acting skeletal muscle relaxant are as follows. So basically हम इसको succinylcholine को देते कैसे हैं? As an adjuvant to general anesthesia के साथ succinylcholine is used for surgical procedure of brief duration. Succinylcholine is used for to control convulsion for convulsive therapy in treatment of tetanus and status epilepticus. कुछ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हैं जैसे मेफेनेसिन, क्लोरजो क्लोरजोक्साजोन, मीथोकार्बामोल, कैरिसोप्रोडोल और फेंड्रिन टीजिनाडिन. एंड जो हमारा ये ड्रग है मेफेनसिन, इट वाज द फर्स्ट ड्रग यूज एज मसल रिलैक्सेंट बट ड्यू टू सीरियस साइड इफेक्ट hemolysis, hypertension, thrombophlebitis, it is not clinically used now. Chlorzoxazone is related to mefenacin. It is used in painful skeletal muscle spasms, and it is used in combination with paracetamol and diclofenac. क्लोरजोक्साजोन बच्चों, हमने कॉमनली भी अगर आपको याद हो, मसल स्पैज्म हो जाते हैं जिसको हम है ना मसल स्पैज्म हो जाते हैं कभी कभी हमारे को, तो उस केस में ये दिया जाता है. टिजानिडिन है ये स्पास्टिसिटी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रॉनिक माइलोपैथी, डीजनरेटिव डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, इन सारी डिजीजेस में ये यूज होता है. नाउ कमिंग टू यूनिट 12 में हम लोग बात करेंगे कीमोथेरेपी की. ये थोड़ा यूनिट 12 बड़ा यूनिट है, एंड इस यूनिट में हमारा एंटीबायोटिक्स आएंगी मेनली. सो कीमोथेरेपी इज यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस diseases by killing or inhibiting growth of causative organism without damaging host tissue or cells. एंड क्लासिफिकेशन है इसमें. एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं, एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स होती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं. सो दीज आर द ड्रग्स which are used. Now, Paul Ehrlich demonstrated effective use of methylene blue in treatment of malaria. He also synthesized arsenic compounds effective in treatment of syphilis. Then we have Penicillium notatum. Alexander Fleming ने एक फंगस से देखा कि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं. एंटीबैक्टीरियल दो तरीके के होते हैं, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक. साइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार दे, स्टैटिक मतलब जो उनकी ग्रोथ को रोक दे. सबसे पहला है हमारे पास पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो है, this was originally extracted from mold Penicillium notatum, but now it is extracted from its related mold Penicillium chrysogenum due to its high yield. Penicillin consists of a beta-lactam ring, which is essential for its antibacterial activity. Penicillin is sensitive penicillin. It is most potent beta-lactam antibiotic and inhibits the growth of susceptible microorganisms in vitro in lowest concentration. The main therapeutic use of penicillins are as follows: streptococcal use, staphylococcal, meningococcal, pneumococcal. ये सारी डिजीजेज में पेनिसिलिन को हम यूज करते हैं. अब
एक इम्पॉर्टेंट बात है, सेमी सिंथेटिक कुछ पेनिसिलिन्स हैं जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक साइड चेन्स इन प्लेस ऑफ बेंजाइल साइड चेन। ये बेंजाइल पेनिसिलिन की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए, जैसे बायो अवेलेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी एंड ऑल। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है हमारे पास। इट इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय पेनिसिलिनेज। Mainly, it exhibits activity against gram-positive microorganism and it is useful against penicillin production, staph aureus. Cloxacillin has a weaker antibacterial activity than penicillin. Penicillin. It is devoid of any serious effect, but it can cause hypersensitivity. ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती हैं कुछ, जैसे कि एम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन। एंड एम्पेसिलिन और अमोक्सिसिलिन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। एम्पेसिलिन ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी है, एंड अमोक्सिसिलिन जो है दिस बहुत कॉमनली हम इसे स्किन, ईएनटी इन सब के इन्फेक्शंस में देते हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हमारे पास है जिसमें क्लावुलानिक एसिड है। ये जो क्लावुलानिक एसिड है दिस is a progressive inhibitor of wide variety of beta lactamase produced by gram positive and negative organism. It is obtained by Streptomyces clavuligerus. It has no antibacterial activity. इसमें sulbactam भी है another semisynthetic जो यूज होता है। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन जिसमें हमारा कार्बेनिसिलिन है और पिपरासिलिन है। एंड ये बहुत ज़्यादा कार्बेसिलिन, पेनिसिलिन एंड टेक्रासिलिन दे आर द these are indicated mainly to treat gram-negative bacilli infection by Pseudomonas proteus enterobacter. Carbenicillin mainly serious infections caused by Pseudomonas aeruginosa के लिए दिया जाता है। It is effective against certain other gram-negative bacilli includes proteus एंड इसको हम बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, जेनाइटो यूरिनरी इन सब में देते हैं। बट पिपरासिलिन का भी ब्रॉड एक्टिविटी है, इसकी भी एक्सीलेंट एंटी सूडोमोनल एक्टिविटी है। मेनली हम इसे यूटीआईज में यूज करते हैं। पिकरसिलिन भी एक बहुत ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव एंटीबायोटिक है। ये ज़्यादा पोटेंट है कार्बेनिसिलिन से। देन हमारे पास है सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम। Sulfonamides basically, chemically, are sulfonamides may be considered to be derivative of sulfanilamide. Sulfonamides were the first antimicrobial agent effective pyogenic bacterial infection के लिए, mainly chlamydia, streptococcus, actinomyces इन सब diseases के लिए ये यूज होता है। Now, trimethoprim is related to anti-malarial drug pyrimethamine, which selectively inhibits bacterial dihydrofolate reductase necessary for conversion of dihydrofolate to tetrahydrofolic acid. Sulfonamide act by inhibiting incorporation of PABA into dihydrofolate. Important therapeutic uses जो इसके हैं वो है urinary tract infection, bacterial diarrhea and dysentery, respiratory tract infection in the treatment of typhoid, chancroid, sexually transmitted diseases, prophylaxis and treatment of HIV associated infections. Now coming to cephalosporins. Cephalosporins जो है ये फर्स्ट जनरेशन, इनकी जनरेशन है cephalosporin की, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन cephalosporin, देन हमारे पास है सेकेंड जनरेशन cephalosporin। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के अंदर हमारे पास आ जाता है सिफालेक्सिन, सिफाजोलिन एंड सिफालेक्सिन ग्राम पॉजिटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, पर ग्राम नेगेटिव के लिए ये उतना इफेक्टिव नहीं है। नाउ सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास है सेफ्यूरोक्सिम, सीफाक्लोर, सेफ्टाजिडम। जो सेफ्यूरोक्सिम और सीफाक्लोर है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, और जैसे कि
लोअर ईएनटी के इन्फेक्शंस हो गए, ये इनमें ड्रग जो है काम आती है। सिफ्टाजिडिम, सेफ्यूरोक्सिम, सीफाक्लोर। सिफ्टाजिडिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिफेलोस्पोरिन है जिसकी एंटी सूडोमोनाल एक्टिविटी है। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है सीफोटेक्सिम, सीफ और सेफ्ट्रायोक्सॉन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिफेलोस्पोरिन हैं। एंड फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में सिफीपाइम एंड सिफीरोम, ये हमारा फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। देन हमारे पास कुछ क्विनोलॉन्स हैं जिसमें नेलिडिक्सिक एसिड फर्स्ट मेंबर है एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेनली ई कोलाई एंड शिगेला। मेन यूज है नेलिडिक्सिक एसिड का यूटीआई के अंदर, गैस्ट्रोएंटराइटिस के अंदर, टाइफॉइड, सेप्टिसीमिया, ओटाइटिस मीडिया। फिर हमारे पास है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, ऊफ्लॉक्सासिन। ये सारी ड्रग्स जो है हमें हमारे पास क्विनोलोन्स के अंडर आती हैं। नाउ ciprofloxacin is effective against a broad range of microorganisms. It has been used widely as a drug of first choice for typhoid. इसमें रेजिस्टेंस भी देखा गया है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे माइकोप्लाज्मा, लीजियोनेला, मल्टी ड्रग ट्यूबरक्यूलोसिस में भी इसको यूज करते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन थोड़ा लेस पोटेंट है पर हम इसको जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज करते हैं। Pefloxacin is a derivative of norfloxacin preferred for meningeal infections. It is used in treatment of gonorrhea or typhoid. Sparfloxacin जो है it is difluorinated quinolone effective against gram negative bacteria anaerobes. एंड फिर अब हम आ जाते हैं मैक्रोलाइड्स के ऊपर जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है। मेनली इनका यूज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, मैस्टोइडाइटिस, इन सब में करते हैं। बहुत अच्छी ड्रग है। और एटिपिकल निमोनियाज जैसे माइकोप्लाज्मा, लीजियोनेला, इन सब के निमोनिया में भी हम इसे यूज करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक ड्रग है जो एटलीस्ट हम सब ने अभी तक खाई होगी। एजिथ्रोमाइसिन कोई भी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माइनर इन्फेक्शन होता है, एजिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस। देन हमारे पास कुछ अलग ड्रग्स हैं जिसमें पॉलीमिक्सिन डी आता है, बेसिट्रेसिन आते हैं एंड टायरोथ्रिसिन आते हैं। ये सारी हमारी ड्रग मिसलेनियस ड्रग्स के अंदर आती हैं। देन वी हैव क्लिंडामाइसिन, वेंकोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। क्लिंडामाइसिन इट इनहिबिट्स मोस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई and it is used in combination of aminoglycoside in treatment of abdomen and GIT wounds. Clindamycin को यूज किया जाता है फीमेल जेनिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, निमोनियाज के लिए हम इसको यूज करते हैं। Then we have lincomycin. It is indicated in upper and lower respiratory tract infection. Then we have vancomycin. सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस में हम इसे यूज करते हैं। देन वी हैव एंटी प्रोटोजोवल एंड एंटी हेलमिथिक एजेंट्स जिसमें एंटी अमीबिक एजेंट्स हैं, इमिडाजोल्स है, क्विनोलोन्स है, सारे ड्रग्स हम यूज करते हैं। एमेंटाइन डेरिवेटिव है, डाइलॉक्सानोट फ्यूरेट है, ये सारे के सारी ड्रग्स जो है। ना अगर मैं बात करूं लिशमेनियासिस की, काला आजार, ये लिशमेनिया डोनोमनाई की तरफ वजह से होता है और इसको प्लेबोटमस सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करता है। The important drug used in leishmaniasis is pentamidine, sodium stibogluconate, antifungal antibiotics, amphotericin and ketoconazole. पेंटामिडिन जो है एक एरोमेटिक डाइअमाइडिन फॉर्मुलेटेड है। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टोसिस में हम इसको यूज करते हैं। देन हमारे पास सोडियम स्टेबोग्लूकोनेट है, ये ड्रग ऑफ चॉइस लिशमेनियासिस के लिए है। देन ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए, ट्रिपैनोसोमियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन इरप्शन इन सस्टेन फीवर, लेथार्जी एंड लिम्फेडेनाइटिस।
ट्रिपैनोसोमा की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें सुरामीन इज यूज एज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर अर्ली हेमोलिम्फेटिक रिकन ट्रिपैनोसोमियासिस, जो ट्रिपैनोसोमा ब्रुजाई करता है। देन हमारे पास है ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस की वजह से होता है ट्राइकोमोनियासिस। एंड वल्वो वेजिनाइटिस करता है, ये ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है इसके अंदर। एंड देन हमारे पास कुछ है एंटी हेलमिंथिक एजेंट, जैसे मिबेंडाजोल, लीवामिसोल, निक्लोसामाइड, पिप्राजीन सिट्रेट। ये हमारे पास सारी ड्रग्स हैं जो कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं। हेलमिंथ इन्फेक्शन के लिए ये काम आती हैं। मेबेंडाजोल की वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है। And after administration, it is poorly absorbed, and approximately 90% of drug is passed in feces. Complete clearance of parasite from GIT may take up 3 days. Albendazole, mebendazole की तरह ही है, but it has longer action. Then हमारे पास है parental palmate, ये भी worms के लिए इफेक्टिव है। डाइल इथाइकार्बामजीन, ये फाइलेरियसिस के लिए, ट्रॉपिकल येसियोटोफिलिया के लिए काम आता है। Ivermectin is a very important drug, and then praziquintal। ये सारे ड्रग्स लार्वा और एजेंट जो हमारे एडल्ट वर्म होते हैं उनके लिए काम आता है। सो बेसिकली वी आर डन विद यूनिट 1 and यूनिट 2, and if anyone is having any doubt you may ask. Otherwise we will continue with our next unit tomorrow morning, same time, 10 a.m. If anyone is having any doubt, you may ask.